Hello students, today I am going to start the topic that is very important and very interesting, capacitance and capacitor. Actually this topic is in the second chapter of physics, 12th physics, and in the first unit electrostatics. We have learned electric potential, that is first part of this second chapter. Now today I am going to start electrical capacitance. But before starting this topic, I would like to discuss some very important point, how a conductor behaves when it is placed in external electric field. तो पहले पढ़ते हैं किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है. Behavior of a conductor in external electric field. Two, three points are very important related for this point, जो हमें जाननी चाहिए कि अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है. ऑल ऑफ यू नो कंडक्टर होता क्या है. मीन्स ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करना अलाउ करता है. मीन्स ये क्या है, ये अलाउज चार्जेस टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ, अपने अंदर से चार्ज को अलाउ करता है कि जाओ. एंड यू नो कंडक्टर तीनों स्टेट में होता है. इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस. अगर मैं बात करूं मेटल्स की, मेटल्स मींस व्हाट, इन सॉलिड, देन इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एनी मेटल, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर एनीवेयर, बट दे डोंट हैव दैट मच एनर्जी so that they can leave the conductor. They are inside the metal. Okay, तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. And one thing more, you know, when charge is placed in electric field, अगर चार्ज को प्लेस करते हैं, then electric field exert force on this charge. And if this charge is positive, this charge experiences force along the electric field. And if charge is negative, then negative charge experiences force same in magnitude, F is equal to minus QE, but opposite to the electric field. Means electric field exerts force on positive charge along the field and on negative charge opposite to the field. And in the case of metal has huge amount of free electrons which are responsible for current conduction of the metal. Okay, what will happen, metal means what, conductor, when you place metal or conductor in external electric field, होता क्या है. See children, first point means first very important conclusion. Suppose electric field is from left to right, this one ext, here to here. Okay, now if we place a conductor between the plates, or you can say in external electric field, तो होगा क्या, जो ये फील्ड है, it exert force on the charges inside this conductor, and due to this electric force, electrostatic force,
जितने भी नेगेटिव हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द मेटल और कंडक्टर, एंड पॉजिटिव, तो सेकेंड प्लेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज, due to movement of charges inside the conductor, an electric field is induced inside this conductor, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इंड्यूस हुई है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EI इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर एक फील्ड जनरेट होती है, इंड्यूस होती है, एंड हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। गॉट इट। अब देखिए ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है इट कंटिन्यूज टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड becomes equal। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंड्यूस्ड एंड एक्सटर्नल फील्ड becomes equal and opposite and further migration of electron stop। तो इस तरफ क्या है भाई, E एक्सटर्नल, यहां भी है E एक्सटर्नल और यहां पे है। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वल हो गया, सिचुएशन व्हेन E एक्सटर्नल एंड ये है E एक्सटर्नल एंड EI मीन्स व्हाट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड becomes equal, further movement of electrons or free electrons inside the conductor stop। Stop means EI becomes equal to E external in magnitude, और अगर ऐसा हो गया है then electric field net inside that will be E external minus EI, that will become 0। Children, this is very important conclusion about the conductor when placed in external electric field। Thus, when a conductor is kept in external electric field, net electric field inside the conductor becomes zero। मीन्स कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 हो जाएगा, एंड ये हमेशा होगा जब आप फील्ड के अंदर रखेंगे, वेदर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। मीन्स जब भी कोई कंडक्टर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पता है, 1/4πε0 Q/r², या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू σ/ε0। ये ड्यू टू पैरेलल प्लेट हो जाता है। मीन्स आप इसको सिग्मा मीन्स Q/A होता है ना, Q/A/ε0 है तो सब कांस्टेंट है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है देन नेट चार्ज क्या होगा भैया, it's also 0। means net charge inside the conductor becomes 0। got it? चलिए let us note down till here, then we'll discuss the next। now the next is, first हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर
when kept in external electric field is 0. Now second one, suppose a conductor is given of any shape. ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं बिल्कुल स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है. ओके, देन जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज. बट जो भी होगा आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड्स, वट एवर इट इज, बट दैट इज परपेंडिकुलर. जैसा मैं इसको लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करते हैं. जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर electric field is normal to the surface of conductor, to the surface of conductor everywhere. Everywhere मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वट एवर द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. चलिए, हमने बता दिया कि ये नॉर्मल होता है, बट अगर कोई कंफ्यूजन है तो ऐसा मान लेते हैं कि इट्स नॉट नॉर्मल. आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल, इज नॉट नॉर्मल, नहीं है तो क्या होगा? नॉर्मल नहीं है मतलब क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा. लेट इट्स नॉट नॉर्मल, ये कोई एंगल बना रहा है. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर मींस इट हैज टू कंपोनेंट्स. वन इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज ई परपेंडिकुलर एंड सेकेंड इज व्हाट, टेंजेंशियल ई पैरेलल. ऐसा हो गया, ठीक है. ये तो परपेंडिकुलर है. वर्क डन ऑन द चार्ज हियर ड्यू टू दिस विल बी 0. बट व्हाट अबाउट ड्यू टू दिस? ये जो पैरेलल है, टेंजेंशियल है टू द सरफेस, इट विल exert force on the charge along the surface and due to that charge will move. Charge move means what? This parallel electric field produces surface current on the surface. Not then there is a component of electric field which is पैरेलल टू, पैरेलल या फिर बोलते हैं पैरेलल या फिर टेंजेंशियल बोल सकते हो आप, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस which produces surface current ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज. एंड क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल फील्ड ये फोर्स अप्लाई करेगा ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज. सरफेस करंट जो कि, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल इन स्टैटिक सिचुएशन या फिर स्टैटिक चार्ज. और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इट मींस जो फील्ड है जस्ट आउटसाइड द सरफेस दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मींस ये टेंजेंशियल वाला ये पॉसिबल ही नहीं है.
मतलब ये नहीं हो सकता. इट मीन्स जो फील्ड है just near the surface of conductor, that is always normal to the surface of conductor. Children, draw this diagram and note down. As the third property is what? Net charge inside the conductor is zero and extra charge whatever is given resides on the surface of conductor. चलिए, net charge inside zero. Just in the first property we have learned E is equal to zero. Net electric field inside the conductor is zero. Very good. चलिए जरा डायग्राम बनाते हैं. मान लेते हैं कोई कंडक्टर इज लाइक दिस, ओके. चिल्ड्रन, यू हैव लर्न्ड गॉस थ्योरम, दैट इज phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट ds. ये हमने सीखा है पहले ही, ओके. चलिए, here inside the conductor electric field is what? Zero. Draw a Gaussian surface just near the surface of conductor. Gaussian surface whose radius is here in this case is almost the same as the radius of spherical conductor. ये हमने गॉसियन सरफेस ले लिया. एंड बाय द गॉस लॉ यू नो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट ds. E क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, दिस वन. और ये है क्या? जीरो है. इट मीन्स ये क्या हो गया? जीरो हो गया. तो Q कितना आ जाएगा? Q को मैं Q नेट लिख देता हूं. देन Q नेट विल बी जीरो. अगर कोई चार्ज अंदर आ गया इट मींस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ फाइनाइट होगी. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मींस नेट चार्ज विल बी जीरो. दैट्स व्हाई इफ चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्सेस चार्ज, तो चार्ज कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं. बिकॉज अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही, ये हमने सीख लिया है. ठीक है. टू मेक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो यहां पे क्या सीख लिया कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द सरफेस. ओके. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant inside and inside the conductor and same on the surface of conductor. इसका मतलब क्या है? हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड बाहर क्या है? परपेंडिकुलर है. बाहर क्या है? परपेंडिकुलर. एज यू नो एंड ऑल्सो वी नो दैट E इज इक्वल टू व्हाट? dv बाई dr. dv बाई dr, ये हमने देखा है. But electric field is zero inside the conductor and also perpendicular to the outer surface. E is equal to zero. तो dv by dr is equal to क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. Then dv is equal to zero. तो v क्या हो गया? कांस्टेंट. इसका मतलब हर जगह पे अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट. क्या होगा?
कांस्टेंट, एंड आउटसाइड इट्स परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। जरा देख लीजिए, मैं इस चीज को अगर मैं ऐसा लिखूं, dv इज इक्वल टू E डॉट dr, लाइक दिस मैंने लिख दिया। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलोंग द सरफेस। इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हैं, दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, बट दे आर परपेंडिकुलर, देन ए बी कॉस 90, एंड कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, मींस इट्स आल्सो 0। इट मींस व्हाट, v इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू v इनसाइड। अगर हमने स्पेशल केस में यहां पे क्या लिया है, ये स्फेरिकल लिया है, देन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, तो रेडियस हो जाएगा। मींस इनसाइड द कंडक्टर potential is constant and that potential is same as on the surface of conductor. Got it? These are the very important property of a conductor when it is kept in external electric field. One very important property is also there. If a conductor given has cavity inside, if conductor given has cavity inside, the electric field is also zero there. Means एक कंडक्टर दिया है, मान लेते कोई कंडक्टर is given here, it's a conductor given, और यहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पर कोई कैविटी है, तो बाय गॉस थ्योरम चिल्ड्रन यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। मींस सपोज लाइक दिस, हियर इज नेगेटिव, हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो V क्या होगा, यहां पे कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म में अगर आप किसी कार के अंदर हैं, किसी व्हीकल के अंदर हैं, जस्ट लाइक दिस कैविटी, देन इट इज सेफ टू बी देयर देन टू गो आउट नियर द ट्री और इन ओपन ग्राउंड। अगर कार के अंदर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, एंड दैट विल बी बेटर गुड फॉर यू देन टू गो आउट फॉर any shelter like tree or on open ground or building anywhere. Okay, then these are the main 4 properties of conductor shown in electric field. Okay, I will discuss some more thing in next lecture, and after that we'll come to the point